how she turned from being a pilot to being a software engineer intern in Microsoft. What challenges do you face being a pilot, and what challenges you face being in the corporate industry, being a software engineer intern in this big company like Microsoft? Even while copy pasting any code or any. सो हेलो गाइस, माई सेल्फ सौरभ भारद्वाज एंड आज हम आ चुके हैं एक और बढ़िया वीडियो के साथ में। अभी तक हमने बहुत सारी वीडियोस देखे होंगे जिसमें आपने देखा होगा हाउ अ सर्विस बेस्ड इंजीनियर टर्न इनटू अ प्रोडक्ट बेस्ड इंजीनियर, हाउ अ गाय फ्रॉम टीसीएस गॉट इनटू द माइक्रोसॉफ्ट। बट टुडे मैं आपके लिए कुछ इन सब चीजों से अलग लेकर आया हूँ। सो आज मेरे साथ में है तनीषा। हम सबका बचपन से सपना होता है ना कि पायलट बनना होता है, किसी को फुटबॉलर बनना होता है, बहुत सारे सपने होते हैं, राइट? सो ऐसे ही तनीषा जो है, शी हैज अ प्राइवेट प्लान लाइसेंस, राइट? हाउ शी टर्न फ्रॉम बीइंग अ पायलट टू बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर intern in Microsoft. That's what we are going to cover today. And now I will move on to the Tanisha to introduce herself to the audience. Hi, my name is Tanisha Sharma. I'm a third year BTech student and I'm a licensed private pilot. And right now I'm interning at Microsoft. I've just ended my internship and yes, I'm like handling both my careers in aviation and tech industry. So yeah, glad to be here. थैंक यू तनीषा। सो तनीषा, सबसे पहले आगे टेक्निकल जाने से चीज़ों को मैं पहले पूछना चाहता हूँ कि ये पायलट बनने का सपना जो था, क्या ये ऐसा था कि बचपन में से प्लेन देख रहे हो तुम और तो तुम्हें प्लेन उड़ाने का मन कर रहा है? मेरे को याद है जब मैं बच्चा था तो देयर वाज वन सीरियल सारा आकाश, शायद लोगों ने नहीं देखा हो, तो वहाँ पे दे कवर्ड द फाइटर प्लेन जर्नी एंड आई ऑलवेज वांट टू ड्राइव अ फाइटर प्लेन, ओके? एंड राइट नाउ एज वेल व्हेन आई सी रिपब्लिक परेड एंड all those things, I want to fly, but I never go beyond that, learning how to drive a plane and all those things. So like what motivate you, or like is that someone else wish, or you just too intrigued by how to drive a plane and you decided, okay, I want to learn this, that's it? Like what's your backstory? Yeah, so yes, obviously, I mean, I used to see planes bachpan mein, then yeah, it used to intrigue me, but it wasn't like I want to go into aviation only. I was very open. I wanted to become an IS earlier, but this wasn't the case. My dad always wanted me to become a pilot, so he always used to put this in my mind that you have to become a pilot. So slowly I had that in my mind ki pilot banna hai, and that's why I got into this. And 10th से ही I started preparing for student pilot license and फिर private pilot license 12th के बाद। तो वही ये सब चीजें एंड ऑल्सो द एड्रेनलिन रश जो एविएशन में है, दैट्स द मोस्ट अमेजिंग थिंग। मतलब नथिंग कैन बीट, चाहे किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओ, वो एकदम बेस्ट चीज है एंड इट्स स्टिल इनकम्पेरेबल विद एनीथिंग। So I think now you don't have the fear of heights and all those things. And does it, like as we see in the movies and all those things, that flight captains are generally sounded too cool, they are charming, and they take things very casually and all those things. And do you also do the report, Roger, and other things, other code words, or like in this private plane license, you just drove a plane and not like other things? And one more question is, can you like now drive any commercial plane? Like if you hold a license or something, right at this stage, are you able to drive a commercial plane? I can fly an aircraft, but I can't fly like the normal aircrafts like Airbus A320 or Boeing 737 or 777. I can fly small aircrafts like Cessna 172, Cessna 152 or Piper. They are two-seater or four-seater aircrafts that I am allowed to fly. At this point also, if I show my license, I'll be allowed to fly that. There's a condition like I can carry customers, but I won't be able to charge from them. This is the drawback, you can say, of private pilot license or a restriction of private pilot license. One last question I have regarding this only, that how it is different from learning to drive any new vehicle, like learning to drive a car and Actually, it's exactly the same. Like you learn scooty or car, it's exactly the same. Just the thing that it's on a height. So first time it was a little scary and nervousness was there. That what if it crashes? There are thousands of thoughts that scare you in your mind. But yeah, apart from that, nothing else. It's as easy as you learn a new vehicle like a car or a scooty. Scooty is easier, but yeah, like you learn a car, it's similar to that. But yeah, aircraft needs a lot of practice, a lot of supervision because one mistake and everything can go away. So yeah, that is there. I like to move to the next question, and मैं ये पूछना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू कि what exactly you find it difficult, like being in this corporate culture or being a pilot? Like I know it comes with its own set of difficulties, but if you want to draw a contrast for me, like what challenges do you face being a pilot, and what challenges you face being in the corporate industry, being a software engineer intern in this big company like Microsoft? One thing is balancing work and life. Like as an intern, I have got less time at home or with my family, but this wasn't the case when I was learning to fly. I used to come back in like 3-4 hours, so that was pretty chill over there. But yeah, learning aircraft is pretty much difficult as compared to learning a new programming language or learning a new tech stack.
stack or something, because you need to be very meticulous about the buttons you are pressing, about the communication you are having with the ATC, because one mistake or one wrong code you put in and it will all just go away. So yeah, learning aircraft is quite much difficult as compared to programming language, but it is also fun. Yeah, as you said that it comes with its own set of advantages. So yeah, the adrenaline rush, as I talked about, it's incomparable. You go to any industry, nothing would satisfy that feeling. After being there, like nothing is as good as that. But yeah, Microsoft is also so good. Like I met so many people over here, and being an offline internship, it has I've learned so much over here, and so many new tech stacks and programming languages and all. So yeah, it has been pretty much fun. So I get this, that being an intern and being a software engineer, you can put some bug in your code and then you can rectify it later and all those things. Sometimes we make mistakes, but like in pilot, you have to be more cautious that you can't put anything. So the pressure is, I think, great there, but that will be compensated by the adrenaline rush. And like, is there any similarity between, or is there anything that helps you here in this software engineering journey that you learn from your pilot journey or from your getting a private plane license? Is there anything that help you here? Yes, it did. So, like as I told you, we have to be very particular or very detailed oriented when we are flying. So, yeah, that thing has helped me a lot, because the project I was working on here at Microsoft was migration of a current service to a new deployment mechanism, and that required to be very compliant, because once the service breaks, it will be all blamed. So, yeah, that attention to detail has helped a lot, because even while copy pasting any code or any ARM template, I had to be very particular that the name should be different for both the regions or all the regions. So yeah, that thing has helped a lot. The attention to detail thing and being meticulous about each thing. Because yeah, as in code, if we miss a semicolon, it would be an issue again, and we need to just find where we have missed it. So yeah, these things, these errors, I don't face it a lot, because I have been particular these years. So yeah, these errors are something that I don't face, and copy pasting also, it's very particular and detailed oriented. तनीषा, नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क, कैसे मतलब अपनी जो डेली लाइफ की साइकिल होती है उसको अपन ब्रेक करें? जैसे कि कई लोग होते हैं, ठीक है, जिनको करने का बहुत मन होता है, लाइक मैं भी उनमें से एक हूँ, मुझे भी पायलट बनने का शौक था, मुझे स्टैंड अप कॉमेडी में भी जाने का मन करता है बहुत। हाउ यू ब्रेक दिस होल साइकिल? किसी एक बंदे का अगर करियर बन चुका है, लाइक इफ इट वर टू माई सेल्फ, अगर मैं पायलट का लाइसेंस ले चुका होता तो मैं सोचता कि मैं अपना करियर उसी में कंटिन्यू करता हूँ, वाई स्टार्ट समथिंग न्यू, क्योंकि एक नई चीज सीखने फिर से मेहनत लगेगी, थोड़ा आलस आ जाता है उस चीज से। एंड अगर मैं ऐसे FT हूँ मैं अगर, तो मैं चाहूंगा कि मैं इसी चीज में आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरे को इसका प्रायर नॉलेज है। अगर मैं किसी दूसरी फील्ड में जाता हूँ तो मुझे फिर से नया स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर से जो लैडर है वो चढ़नी पड़ेगी, एंड ऑल दोज थिंग्स, राइट? सो हाउ वन कैन मेक अ ट्रांजिशंस एंड हाउ यू टेक डिसीजंस, लाइक व्हाट इज द थॉट behind taking decisions, and how you decide that I want to do this, I want to do that transition? What is the like your perspective on this? एक कोटेशन है, इफ यू आर नॉट क्रिएटिंग वेव्स यू आर नॉट किकिंग हार्ड इनफ। तो मतलब मैं तो मन में एक बार जो चीज आती है एंड इफ लगता है कि वो करना है तो आई जस्ट डू इट। एंड अगर किसी को करना भी है तो आई थिंक कर लेना चाहिए। डजंट मैटर कि ज्यादा अचीव कर लिया है उस इंडस्ट्री में, अगर कुछ और सीखने का मन है तो एटलीस्ट सीख तो सकते ही हैं, अगर पूरा लाइफ टाइम वैसे नहीं करना हो। बट सीखने के लिए तो ये चीजें हैं, एंड अगर मन है सीखने का तो आई थिंक सबको सीखना चाहिए। बट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट किसी फील्ड में यू हैव टू स्टे उस फील्ड में काफी टाइम के लिए, तभी इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है। तो हाँ, अगर मन है तो ऑब्वियसली सीखना चाहिए, एंड जो आ रहा है वो करना चाहिए, एंड पैशन सपोर्ट करना चाहिए। अभी जैसे मैंने ये सब कर लिया, बट अभी मैं TT सीख रही हूँ खेलना, अच्छा लग रहा है खेलना, इस वजह से सीख रही हूँ। मेरे को TT प्लेयर नहीं बनना है, प्रोफेशनली नहीं खेलना है, बट अभी मन है तो इसलिए मैं TT सीखती हूँ। हाँ, तो यही है, जो सीखने का मन है वो सीखना चाहिए। लाइक अनदर थिंग इज, जब अपन वो चीज सीखने लग जाते हैं सो उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है अपने को उस चीज के लिए। सो उसके लिए क्या कुछ मतलब कोई टेक्निक है, या फिर इट जस्ट की सेम जो चीज हम सुनते हुए आ रहे हैं कि अगर किसी चीज को अच्छे से करना चाहो तो उसके लिए टाइम निकल ही जाता है, या ऐसा कुछ है, या फिर कुछ प्लानिंग चलती है, या कुछ टेक्निक है जो तुम फॉलो करती हो? हाँ, तो एक तो फर्स्ट चीज वो तो है जो आपने बोली कि अगर जो चीज चाहिए उसके लिए टाइम निकल ही आता है। एंड यस, थोड़ा प्लानिंग करना पड़ता है, एंड थोड़ा वीकेंड्स वगैरह पे भी ये काम करना पड़ता है। तो पहले ही जैसे कॉलेज के साथ जब होता था तो मैं प्लान कर लेती थी, ऑनलाइन था तब कॉलेज, तो कि ये वाले आवर्स कॉलेज के हैं एंड उसके बाद फिर डायरेक्ट ये करना है 4 आवर्स ये। तो स्टार्टिंग के 6 आवर्स कॉलेज, 8 to 2 या 10 to 4, एंड फिर नेक्स्ट 4 to 8 एविएशन का। तो यस, प्लान तो थोड़ा करना पड़ता है, थोड़ा हेक्टिक होता है, बट हाँ, अगर करना है तो करना ही है, फिर कुछ इफ एंड बट नहीं होता। सो कुछ अपन अपने लास्ट सेक्शन में पहुंच चुके हैं जहाँ पे अपन अपने जूनियर्स से बात करेंगे। सो इंडिया में ऐसा होता है, मतलब
अपन इंजीनियरिंग कर लेते हैं, उसके बाद में हमें पता चलता है कि हमें एक्चुअली में करना क्या होता है। अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे नहीं पता कि मैंने इंजीनियरिंग में कैसे चला गया, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सब चीजें ना होती चली गई। लाइक मैंने 11th में नॉन मेडिकल ले ली, लेकिन आई डोंट गिव अ मच ऑफ अ थॉट कि मुझे क्या लेना है। मतलब मुझे ऐसा था बचपन से कि नॉन मेडिकल लेनी है, नॉन मेडिकल ले ली, जेईई की तैयारी स्टार्ट कर ली, जेईई की तैयारी स्टार्ट करने के बाद में इंजीनियरिंग कर ली। इंजीनियरिंग करने के बाद में ऐसा आया कि यार हो सकता है कि अपन स्टैंड अप कॉमेडी में अपना बना सकते हैं, थोड़ा कंटेंट क्रिएशन की तरफ जा सकते हैं। तो ऐसा मतलब इंडिया के अंदर मैंने देखा है, आई डोंट नो अबाउट लाइक दिस, बट मैंने जहाँ जिस सराउंडिंग में मैंने देखा है, मैंने जितने लोगों से बात करी, मुझे ऐसा लगा कि सबने मतलब एक पाथ जो है वो फॉलो कर लिया है। दे डोंट नो हाउ दे गेट इनटू दैट पाथ एंड ऑल दोज थिंग्स। सो अगर मतलब कुछ बच्चे 11th 12th या कुछ कॉलेज के अभी बच्चे या फिर तुम्हारे बैच के बच्चे अगर देख रहे हो, सो उनके लिए कुछ तुम कहना चाहते हो कि हाउ दे कैन ब्रेक दिस रेड थ्रेड एंड वो कैसे अभी इस चीज के बारे में सोचना स्टार्ट कर सकते हैं कि व्हाट इज देयर पैशन एंड ऑल दोज थिंग्स। आई फील कि मतलब सबसे ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए हर चीज़ के बारे में। अगर जैसे मेरे को एविएशन में भी जाने का मन था या किसी को इंडस्ट्री चेंज करनी है या कुछ भी है, तो एक बार पूरी नॉलेज ले ले कि इसमें जाना सही भी है कि नहीं। पैशन तो है बट देखना चाहिए कि ये सही डायरेक्शन है कि नहीं, एंड यहाँ पे स्कोप कितना है। एंड उसके बाद भी अगर उसे लग रहा है कि हाँ ये पैशन है, ये करना है, डजेंट मैटर वो किस स्टेज पे है अपने करियर के, देन आई फील उसे परस्यू करना चाहिए, चाहे वो प्रोफेशनली करे या सिर्फ एज अ हॉबी करे। बट इफ समवन फील्स कि अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद ये बेस्ट पोजीशन है जहाँ उसे होना चाहिए एंड ये करना चाहिए, प्रोफेशनली नहीं जाना है, सिर्फ हॉबी के लिए करना है या सिर्फ सीखना है, तो भी उसे करना चाहिए। मतलब एक ही बार तो लाइफ है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, तो यस जो मन में है सब कर लो, फिर तो क्या ही बाद में तो क्या ही होगा। एंड आई थिंक यही एज है, उसके बाद तो आगे और लाइफ का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो जब तक कॉलेज में है एंड ये अर्ली 20s और मिड 20s में है, आई थिंक तब तक तो सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, जब तक रिस्क टेकिंग एपेटाइट है अपना। तो आई फील ऐसे तो करना चाहिए। And like this is the last question of this section, and then I will ask 2-3 fun type of questions. So the last question is, where do you see yourself like in future? What are your future goals? Do you find your passion yet, or are you still exploring the things? Yeah, I'm still exploring, but yes, I like the tech industry a lot and aviation a lot. So I'm trying to figure out एक intersection जहाँ पे tech and ये aviation industry का intersection पे I can work. मेरे को research में ज़्यादा interest है. Something like NASA. Yes, something of that sort. And there are fields like commercial research pilot, and इसमें बहुत ज़्यादा computer science का भी role होता है. So these are some fields I'm still exploring, and yeah, if I get the correct point and the correct intersection, then yes, this is where I'll be. But isn't it like there are many examples, like Indigo use data science to know about where they can park bus and all those things. So it is all based on the data science. But once you become in that industry, it's again you choose to be software engineers because you are in the aviation industry, but you are not actually like flying the planes. And also, will you be going to happy in that just by being a tag of that aviation industry, or is there anything I'm missing here? Yeah, like data science thing that you said Indigo में, yeah, वो तो पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली इंडस्ट्री में आ जाएगा, टेक इंडस्ट्री में. बट देर इज दिस वन पोजीशन दैट इज कमर्शियल रिसर्च पायलट. तो उनका काम होता है सिर्फ रिसर्च करना, जैसे एयरक्राफ्ट लेके जाना एंड रिसर्च करना वहाँ पे उस एरिया में क्या है. तो ये काफी इंटरेस्टिंग है. एंड इसमें भी इट्स नॉट जस्ट फ्लाई करके रिसर्च करना, उसके बाद भी देर इज वन मोर थिंग, द रिसर्च पार्ट, द एक्चुअल रिसर्च, उसमें बहुत कंप्यूटर साइंस इन्वॉल्व है. तो या ये दोनों चीज के बीच में देर विल बी एन इंटरसेक्शन. एंड इफ नॉट, अगर डेटा साइंस वाला भी मिलता है एंड एविएशन इंडस्ट्री में, तो यस दैट विल बी ऑल्सो गुड इनफ. आई जस्ट वांट टू क्रिएट एन इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री में जो इंटरसेक्शन है इसका. सो या किसी भी फील्ड से हो, आई वुड बी हैप्पी. बट यस, एड्रेनालिन रश इज अ फैक्ट. अब वो मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो. Got it. So Tanisha, this is the last section where I'm going to ask you 2-3 questions. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. So जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमारे दोस्त जो होते हैं वो बहुत मतलब उनके कुछ डाउट्स होते हैं, कुछ वो होता है. So can you remember any weird question being asked to you about being a pilot, like some request or something that your batchmate or your college friend asked to you? यस, ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है. प्लीज़ फ्री टिकट्स दिलवा दो, मेरे को यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है. ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन है. मेरे को ही नहीं फ्री मिलते, मैं कहाँ से दिलवा दूँ. तो यस, ये रिक्वेस्ट तो बहुत वियर्ड है. Another thing is हमारे ना पेरेंट्स का एक वो रहता है कि बस एक बार मतलब 10th पास कर लो तो मजे ही मजे हैं, 12th में पढ़ लो उसके बाद तो सब आसान है, मजे ही मजे हैं. सो ऐसा कुछ हमारे पेरेंट्स के थ्रू तुम्हें कन्वे किया होगा कि पायलट कर लो फिर तो मजे ही मजे हैं, या फिर अब तो तुम्हारी माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप लग गई अब तो मजे ही मजे हैं, ऐसा कुछ कोई भी मतलब ऐसा इंसिडेंट जो तुम शेयर करना चाहो? मजे तो कभी होते ही नहीं है, काम ही काम होता है वही. तो मतलब मेरे पेरेंट्स काफी सपोर्टिव है. वो मैं एविएशन में गई, मैं 11th-12th में मैंने भी कोचिंग ऑल द इंजीनियरिंग की थी. मेरा प्लान इंजीनियरिंग का था. फिर एक बार वही
पापा इतना हमेशा से बोल रहे थे एंड उसके बाद मेरा भी मन करने लगा क्योंकि पीसीएम से मैं बोर हो गई थी। तो उसके बाद मैं एविएशन में गई तो हाँ, पेरेंट्स तब ठीक थे कि कर लो जो करना है, एंड उसके बाद वापस से मैं इंजीनियरिंग में स्विच हो गई तो उन्होंने भी कहा जो करना है अभी भी कर लो। अभी माइक्रोसॉफ्ट में यहाँ पे हूँ तो भी वो कह रहे हैं ठीक है, एंड अभी भी अगर मैं उनको बोल रही हूँ कि मेरे को मास्टर्स के लिए जाना है, रिसर्च करनी है, तो वो उसमें भी ठीक है। उन्हें उन्हें बस ये है कि जो करना है करो, बस खुश रहो एंड अपनी मर्जी से करो जो करना है। जब भी हम मतलब किसी इंडस्ट्री के अंदर जाते हैं या कोई चीज करते हैं तो कुछ ना कुछ थॉट्स अपने खुद के भी आते हैं। जैसे कि मैं जब कॉलेज में गया था तो मुझे एक बार था कि मुझे जो मेरे प्रोफेसर है वो मुझे एक बार क्लास के बाहर भेज दें, ठीक है, मैं क्लास बंक कर सकूं। ऐसे ही अभी जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में, मेरा कई बार मन करता है कि मैं सत्य नडेला को जो है मैसेज कर दूं, ठीक है। सो ऐसी कुछ मतलब थॉट्स जो कि हमें पता है कि वो नहीं करना चाहिए, पर ऐसा कोई थॉट्स जो तुम्हें मतलब पायलट के फील्ड में आता हो कि ये करना, या फिर जैसे हम मूवीज देखते हैं घुमा दिया प्लेन को, ऐसा कुछ मतलब कुछ भी ऐसा जो इस इंडस्ट्री से रिलेटेड हो जो तुम्हें मतलब करने का मन करता हो। एंड सेम थिंग गोज फॉर योर इंटर्नशिप एज वेल। लाइक माइक्रोसॉफ्ट में आए तो कोई चीज करने का ऐसा मन था कि ये चीज तो मुझे यार एक बार करने को मिल जाती ना तो मजा आ जाता। हाँ, तो कमिंग टू पहले एविएशन इंडस्ट्री, उसमें हाँ हमेशा से वो तो था कि एयरक्राफ्ट घुमाना है, 360 डिग्री रोटेशन करना है करना है करना है। फिर बहुत परमिशन के बाद और एक अपने इंस्ट्रक्टर को लेके एक बार वो किया है, हाँ हाँ वो किया है, वो बहुत फन था। बट वो एक बार जाता है, उसको कंट्रोल करना काफी टफ होता है, तो यस वो बहुत सुपरविजन में करना पड़ता है। एंड यस, कमिंग बैक टू टेक वन, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं किया। अभी तक तो जब प्रॉड में डिप्लॉयमेंट चल रहा था बस यही था कि प्रॉड फटे नहीं वरना ब्लेम आ जाएगा। बट हाँ, बाकी एक्सेस हर चीज का मिल जाता तो और इजी होता है, पर ऐसा कुछ मन नहीं किया कि कुछ ऐसा हो। कमिंग ऑन, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सो एक टैग होता है जैसे कि शर्मा जी का बेटा एंड यू बीइंग द शर्मा जी की बेटी, सो क्या तुमसे तुम्हारे कजिन्स वगैरह को एनवी होता है कि यार तनीषा, यार तेरे चक्कर में जो है ना मेरे को सुनना पड़ता है घर पे कि देख वो तनीषा जो है वो माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्न कर रही है, देख वो प्लेन उड़ा रही है और देख तू यहाँ पे क्या कर रही है, ऐसा कुछ मतलब कजिन्स की शिकायत होती है फ्रॉम बीइंग अ शर्मा जी की बेटी? मतलब ये तो थोड़ा हाँ ठीक है, ये सब कजिन्स तो नहीं, दोस्तों से ज्यादा सुनने को मिलता है, कजिन्स से तो नहीं। हाँ बट फ्रेंड्स ये सब बोलते हैं, बट ये लोग भी सब अपने अपने फील्ड में इतना सब कुछ कर रहे हैं तो सब खुश हैं एंड बस सब यही रहे। एंड या कुछ नहीं है, जो जो सबको करना है सब वो कर रहे हैं जब तक खुश नहीं हो जाते। थैंक यू तनीषा फॉर दिस वंडरफुल सेशन एंड आई होप ये जो है बाकी लोगों को हेल्प करे जिनको अलग अलग फील्ड के अंदर जाना है। एंड थैंक यू गाइज। सो ऐसे ही यार कुछ अच्छे सेशंस पॉडकास्ट अगर देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, जल्दी से। एंड या मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। थैंक यू।